Friends, welcome back to the series of lecture. This is the 15th lecture of this series of CPC. In this lecture, we would start with section 24. Please take out section 24. On the application of any of the parties. On the application of any of the parties, and after notice to the parties, and after hearing such of them as desire to be heard, or of its own motion. So there are two things they are saying. Two things they are saying. Yeah, so there is an application by the party, and the party who is filing application, that party has to serve a notice to the other party. But they are also saying that the district court or the high court can transfer the suit for its own motion also. Own motion means what? अपनी मर्जी से सुओ मोटो. और अगर अपने मोशन पे करता है कोर्ट तो फिर नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ध्यान से पढ़ो इसको. रीड इट अगेन. On the application of any of the parties, and after notice to the parties, and after hearing such of them as desired to be heard, or of its own motion without such notice. ठीक. So if the application has been filed by a party, then notice has to be served to all the parties. But if the court does it own motion, then notice to the party is not required. So or of its own motion without such notice, the High Court or the District Court may at any stage transfer any suit, appeal or other proceedings pending before it or for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same, or withdraw any suit, appeal or other proceeding pending in any court subordinate to it and try or dispose of the same. Transfer the same for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same, or retransfer the same for trial or disposal to the court from which it was withdrawn. Okay. फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है. अगर एप्लीकेशन है तो नोटिस टू बी सर्व्ड, और अगर एप्लीकेशन नहीं है देन नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड. द कोर्ट कैन डू इट सुओ मोटो आल्सो. अब देन द क्वेश्चन इज व्हाट ऑल कैन बी डन बाय द डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट. अब उसके लिए क्लाउज पढ़ो. एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same. मतलब अपने किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, provided that the other court is competent to try. Now what is meant by competent to try? देखो, जब आप competent शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फिर टेरिटोरियल नहीं आता. competent में पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर आता है, ये ध्यान रखिएगा. when they use the word competent to try, that is not for the territorial, that is for pecuniary and subject matter jurisdiction. Means the court in which you are transferring it, that court will be competent if it has pecuniary or subject matter. Even if it not having the territorial jurisdiction, the transfer can be done. तो यही बात मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए बताया था, that the transfer can be done even to a court which does not have territorial jurisdiction, provided it has pecuniary and subject matter jurisdiction. So transfer any suit, appeal or other proceedings pending before it. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था. यहाँ पर the district court and the high court has the suit or proceeding or appeal pending before itself. ठीक. पहले मैंने बोला था कि सबऑर्डिनेट से सबऑर्डिनेट में, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है. यहाँ पर इट इज द मैटर इज पेंडिंग बिफोर दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दैट हाई कोर्ट एंड इट विल ट्रांसफर द सूट और प्रोसीडिंग टू एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट. पेंडिंग बिफोर इट मतलब क्या? पेंडिंग बिफोर इट मतलब उस कोर्ट में, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
के पास खुद के पास पेंडिंग है फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड competent टू ट्राई और dispose of the same और withdraw any suit appeal or other proceedings pending in any court subordinate to it। मतलब नीचे किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो वहाँ से इट कैन विदड्रॉ। अब विदड्रॉ करने के बाद क्या करेगा? इट कैन ट्रांसफर इट टू सम अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, इट कैन ट्राई इट इटसेल्फ और इट कैन सेंड इट बैक टू सेम कोर्ट। ठीक, पढ़ो। ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम मीन्स व्हाट? सबऑर्डिनेट कोर्ट से उठाकर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कैन ट्राई द सूट इटसेल्फ। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कैन ट्राई द सूट इटसेल्फ एंड डिस्पोज इट ऑफ। सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट से उठाकर केस को खुद ट्राई कर सकता है और उसको डिस्पोज कर सकता है। और ट्रांसफर द सेम फॉर द ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। मतलब किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट से उठाकर अपने पास लेकर खुद ट्रायल कर सकते हो या फिर वहाँ से उठाकर किसी और कोर्ट के पास दे सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द अदर कोर्ट इज competent to try। And then the last one, retransfer the same। सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास ले लिया, विड्रॉ कर लिया और फिर एग्जामिन करने के बाद वापस उसी कोर्ट के पास जाएगा सूट। रीट्रांसफर द सेम मीन्स इट सेंड्स इट बैक टू द सेम कोर्ट। रीट्रांसफर द सेम फॉर द ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विथड्रॉन। सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज, इस तरीके से देखिए, you take the example of anyone, take the example of I am taking of district court। मान लो एक district court है and these are the civil judges। Suppose the matter is pending before the district court, it can be a suit or it can be appeal, whatever। अब the district court can transfer this pending matter to any subordinate court। किसी subordinate court के पास भेज सकता है for trial, provided that that court is competent। तो पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन हो उसके पास। तो दैट इज द फर्स्ट क्लाउज, दैट इज फर्स्ट ए क्लाउज ए। अब आप पढ़कर कोरिलेट कर लो। क्लाउज ए सेज दैट इफ अ मैटर इज पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, इट कैन ट्रांसफर इट बैक टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। देन फर्दर इफ a matter is pending before this civil judge, for example, then the district court can pick up the matter itself। उसको कहते हैं withdrawal of the matter from the civil judge। It can withdraw the matter to itself and try it itself। Okay, so one point is कि civil judge के पास matter pending था, then the district court withdraw the matter and conduct the trial itself। So that is one situation। Now the other situation is the matter was pending before this civil judge। Now the district court withdraws the matter and does not try itself, it transfer it to other civil judge। तो एक तो होगा कि विड्रॉ करके खुद ट्रायल कर लिया और दूसरा विड्रॉ करके किसी और सिविल जज के पास ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी लिखा है इसमें। एंड द थर्ड सिचुएशन इज द मैटर वाज पेंडिंग बिफोर द सिविल जज and the district court withdraws it and thereafter sends it back to the same civil judge, transfers it back to same civil judge। तो ये लास्ट वाला क्लाउज है, retransfer the same for trial or disposal to the court from which it was withdrawn। So have you understood this? ठीक, पहला तो the matter was pending before itself, so it transfers it to a subordinate court। दूसरा pending before a subordinate court, withdraws and try itself, or withdraws or transfer to some other court, withdraw and transfer to some other court, or withdraws and retransfer it to the same court। So all these powers, provided these court जिसके पास भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, these courts should be competent to try। अब competent to try does not include territorial jurisdiction। टेरिटोरियल हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पेक्यूनरी एंड सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। अब कोर्ट रीट्रांसफर क्यों करेगी? अब कोर्ट ने मैटर ले लिया, अगर कोर्ट को लगता है
that there is some complications in matter. If the court finds the complication, it would take the matter and try itself. But if court find that it can be tried by that court, then it would retransfer the matter. कोर्ट ने तो विड्रॉ ये सोच कर किया कि that there are complications in the matter and I should try itself. But later on it finds that there is no such complications, so it sends back to the same court. और या फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने विड्रॉ किया, इशू फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ी थी, उसको ठीक किया और फिर दोबारा भेज दिया ट्रायल के लिए उसी कोर्ट में, तो इसको रिमांडिंग बैक भी कह सकते हैं, मींस इट इज रिमांडेड बैक टू द सेम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के लिए सुओ मोटो लिखा तो नहीं है, लिखा है ऑन एप्लीकेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट, तो खास करके अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर हो तो वो सुओ मोटो कर सकता है, लेकिन नॉर्मल सिविल राइट्स में बिना एप्लीकेशन के इट विल नॉट डू। अब ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे ही फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व हो गया सुप्रीम कोर्ट का रोल बदल जाता है, लेकिन इफ इट इज अ नॉर्मल लीगल सिविल राइट देन द सुप्रीम कोर्ट विल गो बाय द स्टैट्यूट, लेकिन जैसे ही फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व हो गए देन इट विल हैव द सुओ मोटो पावर बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें जनरल आंसर तो होगा नो, फंडामेंटल राइट वाला तो एक्सेप्शनल केस होगा, अदरवाइज द आंसर इज नो। सेक्शन 25 में एप्लीकेशन के थ्रू होगा, ऑन द एप्लीकेशन। नाउ सी क्लॉज 2 of 24, where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, the court which is thereafter to try or dispose of such suit or proceedings may, subject to any special directions in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn. Read it again. Where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, the court which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding may subject to any special directions in the case of an order to transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn. So same thing is there in section 25 also. तो एक बार जब केस ट्रांसफ़र हुआ या तो उसी स्टेज से आप फर्दर ट्रायल करो और या फिर पूरा डी नोवो ट्रायल करो, फ्रेश ट्रायल। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट, इन दिस एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई सूट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर इशू कर सकता है दैट यू शुड रीट्राई इट और यू मे ट्राई इट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द ट्रायल हैज़ रीच्ड। सो वो उसके ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ने खुद विड्रॉ कर लिया एंड इट इज ट्राइंग इटसेल्फ, देन व्हाट? देन इन दैट केस इट हैज द डिस्क्रिशन टू either retry it afresh or go for trial from that stage. Now see clause 3. For the purpose of this section, courts of additional and assistant judges shall be deemed to be subordinate to the district court. अदरवाइज एडीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दे आर सेइंग दे विल बी कंसीडर्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज किसी एडीजे के पास भी केस ट्रांसफर कर सकता है। देन क्लाउज बी सेइंग प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, सो दैट इज फाइन। सूट और अपील यू अंडरस्टैंड, सूट और अपील तो यू अंडरस्टैंड, प्रोसीडिंग क्या होगा? तो दैट इज फाइन, दैट एग्जीक्यूशन proceedings also, they are also called the proceeding for this purpose. So execution proceedings, they are also called the proceedings for this purpose. और execution proceedings को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लॉज, द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉन under this section from a court of small causes shall for the purpose of such suit be deemed to be a court of small causes। मतलब आप अगर स्मॉल कॉजेज कोर्ट से उठाकर किसी सूट को किसी सिविल जज के पास भेज दोगे, फिर भी द सिविल जज विल ट्राई द सूट एज इफ द सिविल जज इज अ स्मॉल कॉजेज कोर्ट। ठीक, मतलब स्मॉल कॉजेज कोर्ट से ट्रांसफ़र करके आपने सिविल जज के पास भेज दिया,
या स्मॉल काउजेज कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खुद उठा लिया और खुद ट्रायल कर रहा है, फिर भी द डिस्ट्रिक्ट जज और द सिविल जज will try it by the method of the trial of small causes court. Now last one, his suit or proceedings may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it. So that is fine. अब मान लो A ने B के खिलाफ एक सूट गलत कोर्ट में फाइल कर दिया and this court is not having the territorial or pecuniary jurisdiction. The suit has been filed in the wrong court. Now can the district court or a high court transfer that suit from there to a court of jurisdiction? Yes. तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो टू अ कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो टू अ कोर्ट ऑफ नॉट ज्यूरिडिक्शन। लेकिन यहाँ पे जस्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जिस कोर्ट में सूट फाइल हुआ है, अगर वो कोर्ट उसके पास ज्यूरिडिक्शन ट्राई करने का नहीं था, तब भी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट उसका ट्रांसफ़र कर सकता है। तब भी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट उसका ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर ज्यूरिडिक्शन था तब भी कर सकता है और ज्यूरिडिक्शन नहीं था तब भी कर सकता है। तो एक बार फिर से पढ़ लो लास्ट क्लाउज, इस सूट और प्रोसीडिंग may be transferred under this section from a court which has no jurisdiction to try it. अब देखो ये क्लाउज 5 नहीं लिखते तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट दे आर सेइंग इज, देखो अब तक जो हमने पढ़ा अभी उसको भूल जाओ। अभी तक हमने पढ़ा कि आपने ओरिजिनल सूट किसी कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन में फाइल किया, तब भी केस ट्रांसफ़र हो सकता है किसी और कोर्ट में। अगर उसके पास टेरिटोरियल ना भी हो तब भी पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर के जुरिडिक्शन में केस फिर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट वी हैव अंडरस्टूड। अब उसी में ये ऐड कर दिया इन्होंने, दैट इवन दिस कोर्ट डिड नॉट हैव जुरिडिक्शन, दैट आल्सो कैन बी अ ग्राउंड फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट टू ट्रांसफ़र इट टू अ कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन। अब मान लो इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है और इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी एक्सेट्रा, तो सेक्शन 24 का पावर यूज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम हियर टू हियर। अब आई एक्सप्लेन इट फर्दर। नॉर्मली व्हाट हैपन इज, मान लो ए ने बी पर सूट किया है इन अ कोर्ट एंड दैट कोर्ट इज नॉट हैविंग ज्यूरिडिक्शन, तब क्या होगा? देयर विल बी अ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट that this court does not have jurisdiction. Thereafter, the court will conduct a hearing, and if it finds that it does not have the jurisdiction, then it will return the plaint. तो एक ऑप्शन तो डिफेंडेंट के पास है कि वो प्लेंट रिटर्न करवा ले। सो एक ऑप्शन तो डिफेंडेंट के पास है कि गलत कोर्ट में अगर आपने फाइल किया तो वो प्लेंट को रिटर्न करवा ले, और या फिर एक और ऑप्शन उसके पास है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन दैट ऑब्जेक्शन, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा ले कि गलत कोर्ट में केस फाइल हुआ, यू प्लीज़ ट्रांसफ़र द केस इन द प्रॉपर कोर्ट। तो उसके पास दो ऑप्शंस हो गए, एक तो वो रिटर्न के लिए ऑब्जेक्शन रेज कर दे, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दे और प्रॉपर कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा ले। सो both the options are there, and normally in these cases the district court and high court cannot interfere. They will ask you to go by the normal proceedings. तो आप objection raise करो and let the hearing be done and let the trial court decide upon the application of upon the written application. Let the trial court decide upon the written application. But the district court or the high court does have the jurisdiction. मतलब power, they have the power to transfer the case to a proper jurisdiction. So उस टर्म्स में द क्लॉज 5 इज टॉकिंग कि आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं डिफेंडेंट के पास, या तो आप रिटर्न करवा कर प्लेंट को, ऑब्जेक्शन के बाद रिटर्न करवा कर प्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में फाइल हो, या फिर लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन के ग्राउंड पर क्लॉज 5 में सेक्शन 24 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा सकते हो और वहाँ से कोर्ट उसको प्रॉपर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। सो दीज टू ऑप्शंस यू हैव गॉट। समझ में आया आपके? यू हैव टू ऑप्शंस, वन इज इट इज बी ट्रांसफर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर 24, एंड द अदर इज टू रेज द ऑब्जेक्शन ऑफ लैक ऑफ jurisdiction एंड हैव द प्लेंट रिटर्न। नॉर्मली आई सेड, जब आप एप्लीकेशन लगाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव jurisdiction and transfer it into the proper court,
तो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट विल नॉट एंटरटेन इट, क्योंकि आपके पास एक लीगल रेमेडी है, लीगल प्रोसीडिंग्स है आपके पास कि आप अपने रिटन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो. सो नॉर्मली दे विल नॉट, बट दे दो हैव द पावर, दे कैन डू इट. तो इसको लिख लो आप इस पॉइंट को. राइट. Whenever a suit has been filed in a wrong court, whenever a suit has been filed in a wrong court, the defendant always has the right to raise an objection regarding the lack of jurisdiction, and upon the hearing of that objection, the trial court may return the plaint for a presentation to the proper court. But Section 24 Clause 5 gives to the defendant another alternative, and that is he can apply to the district court or high court or district court for the transfer the suit to court having jurisdiction, for a transfer the suit to court having jurisdiction, for a transfer of the suit to court having jurisdiction. Normally in such cases, a district court and high court will not interfere मतलब transfer नहीं करेगा. Normally in such cases, district court or high court will not interfere, as the alternative remedy is available to the defendant. What is the alternative remedy? Objection करना, returning of the plaint. But they do have the power to do so. Proper cases में चाहे तो वो transfer कर भी सकता है. So, but they do have the power to make the transfer. Okay, so that's all. तो ये सेक्शन 24, 25 एक्सेट्रा. तो इनको पढ़िएगा बियर एक्ट को अच्छी तरीके से, क्योंकि सीपीसी में बियर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बियर एक्ट को ही बार बार पढ़ो. और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें इशूज़ बहुत सारे हैं, जैसे ज्यूरिडिक्शन में बियर एक्ट के साथ इशूज़ बहुत सारे हैं, तो इनमें बियर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यू हैव टू रीड द बियर एक्ट सेवरल टाइम्स. और यहाँ पर इशूज़ बहुत ज़्यादा, वहाँ पर बियर एक्ट भी इम्पोर्टेंट है और उसके साथ जो इशूज़ पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. So both approaches you have to do. Up next we have to talk about the topic forum convenience. So forum convenience is the balance of convenience. मान लो एक जगह पे सूट फाइल हुआ है, तो ऑब्वियसली कोर्ट विल सी कि ए ने यहाँ पर सूट फाइल किया है, तो ए को यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर ट्रांसफ़र कर देते हो तो ए को क्या लॉसेस होंगे, और यहाँ पर अगर सूट चलाते हो तो बी को क्या लॉसेस होगा, और ट्रांसफ़र कर देते तो बी को क्या बेनिफिट होगा. And then the court will see that who will be greater sufferer, who will be having a more irreparable loss. So that tilt of mind of the court will be in favor of that person. So that will be called the balance of convenience. So forum convenience means what? Forum is court. Forum is a court of convenience of both the parties. इस पे लिख लीजिए आप. There is a case on this. Right? Meyer HK Limited versus Owners and Parties Vessel MV Fortune Express 2006 Supreme Court. A very important case upon this. 2006 Supreme Court. Please write down the points. The transfer of suit has to be done only when the court find it to expedient for the ends of justice. The court has to do a balance of convenience between the parties. Firstly, it has to examine if the suit is continued at the present court, then what is the loss that the defendant will suffer, and whether the loss can be compensated for by payment of cost, or whether the loss will be irreparable. Irreparable मतलब जिसका compensation नहीं हो सकता, or whether the loss will be irreparable. Secondly, the court has to examine as to if the suit is transferred, what is the extent of loss that the plaintiff will suffer,
and whether it will be irreparable or whether it can be compensated by payment of cost। अब एक टर्म आपको लिखवा रहा हूँ, वो लिखिएगा आप, सेंटेंस के फॉर्म में ही है। The court has to examine, right? The court has to examine as to whether by the transfer the plaintiff will lose his legitimate juridical advantage in the suit। ठीक, तो इसको अभी समझाऊंगा, पहले सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, then the court will finally analyze as to whose loss is greater and more irreparable। The tilt of the balance will be in his favor and accordingly the order will be passed। ठीक, तो अगर प्लेंटिफ के फेवर में बैलेंस, तो ऑर्डर पास होगा कि ट्रांसफर नहीं होगा। प्लेंटिफ अगर ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो बैलेंस उसके फेवर में होगा, अगर डिफेंडेंट ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो बैलेंस डिफेंडेंट के फेवर में एंड द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर विल बी पास्ड। अब एक पॉइंट और, ये जितना भी हमने पढ़ा, हु इज हैविंग द बर्डन ऑफ प्रूविंग इट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग इज अपॉन द पार्टी हु अप्लाइज फॉर द ट्रांसफर। अगर मैंने एप्लीकेशन डाला तो बर्डन इज माइन टू प्रूव कि अगर यहाँ पर सूट चलाओगे तो मेरा लॉस ज़्यादा होगा, और अगर ट्रांसफ़र कर दोगे तो प्लेंटिफ का लॉस ज़्यादा नहीं होगा। सो द बर्डन ऑफ प्रूव इज ऑलवेज अपॉन द एप्लीकेंट, द बर्डन ऑफ प्रूव इज ऑलवेज अपॉन द एप्लीकेंट, सो ऑब्वियसली दैट इज द डिफेंडेंट। और जब भी आप आंसर लिखो इस पर, तो बर्डन ऑफ प्रूव पर जरूर लिखिएगा, द बर्डन ऑफ प्रूव विल ऑलवेज बी अपॉन द एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट तो इधर डिफेंडेंट ही होगा ट्रांसफ़र के लिए। ठीक, अब ये आपका जो लेजिटिमेट ज्यूरिडिकल एडवांटेज टर्म आई हैव रिटन हियर, बेसिकली इसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। अब प्लेंटिफ के पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, कॉज ऑफ एक्शन, रेजिडेंस, प्लेस ऑफ वर्क, बिजनेस एक्सेट्रा। अब ही हैज़ बीन गिवन द चॉइसेस, अब ही विल चूज आउट ऑफ दीज कि कौन सा प्लेस मेरे बेनिफिट में ज़्यादा है, मेरे लिए कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल प्लेस है। अब हो सकता है एक प्लेस ऑफ वर्क है और प्लेंटिफ वहाँ रहता भी है, डिफेंडेंट का प्लेस ऑफ वर्क है और प्लेंटिफ वहाँ रहता है, तो ज़्यादा बेनिफिट प्लेंटिफ के लिए वही होगा। तो डिफेंडेंट का प्लेस ऑफ वर्क है, लेकिन इंसिडेंटली द प्लेंटिफ स्टेज देयर ओनली, सो इट इज़ गुड फॉर हिम टू फाइल द सूट देयर, आने जाने का टाइम और खर्चा बचेगा उसका। सो दिस प्लेस इज द प्लेस ऑफ ज्यूरिडिकल एडवांटेज ऑफ द प्लेंटिफ, बिकॉज चॉइस आपने प्लेंटिफ को दे रखा है। फर्स्ट चॉइस इज विद रेस्पेक्ट टू द डिफेंडेंट, आप अपनी जगह पर नहीं कर सकते, वेदर डिफेंडेंट वर्क रिसाइड एक्सेट्रा उस जगह पर करोगे। सो बेसिक डिटर्मिनिंग फैक्टर इज द डिफेंडेंट अंडर कॉज ऑफ एक्शन, लेकिन उसमें भी अल्टीमेट चॉइस किसके पास है, प्लेंटिफ के पास। सो प्लेंटिफ विल चूज दैट प्लेस वेयर ही हैज गॉट लेजिटिमेट ज्यूरिडिकल एडवांटेज इन द सूट। Advantage is not in the merits of the suit, advantage in filing suit। टाइम बचना, खर्चा बचना एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स यू कैन सेव। अब अगर मान लो एक जगह से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह करते हो, तो क्या प्लेंटिफ का जो एडवांटेज है इज ही गोइंग अपॉन दैट एडवांटेज, बिकॉज द पॉलिसी ऑफ द CPC इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ jurisdiction according to the equity acts in personam। First of all, to determine the place of jurisdiction according to the concept of equity acts in personam. But thereafter, out of those various places, the choice lies in the plaintiff. He has to choose where he has to file the suit out of those places. So that advantage, juridical advantage, मतलब jurisdictional advantage, is given to whom? Ultimately to the plaintiff। तो अगर आप सूट को वहाँ से ट्रांसफ़र करते हो, तो डज द प्लेंटिफ लूज द ज्यूरिडिकल एडवांटेज ऑफ चॉइस टू सच एन एक्सटेंट दैट हिज लॉस विल बी irreparable? इफ यस, देन यू विल नॉट ट्रांसफर द सूट। ठीक, ज्यूरिडिकल एडवांटेज मतलब मेरे पास चॉइस है, उसमें से जो भी ज्यूरिडिक्शन मेरे लिए बेनिफिशियल है मैं वहाँ सूट करूँगा।
ठीक, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसको अपने आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। तो इसी में मैं एक मॉडल आंसर लिखवाऊंगा और आप अपना आंसर इससे चेक करना। राइट, a petition for divorce was filed by husband against his wife at Delhi, whereas she was staying at Havra. Earlier, they the two were both staying at Delhi. Earlier they were both staying at Delhi. लेकिन अब उसकी वाइफ चली गई है हावड़ा। अब the wife applied before the Supreme Court under section 25 में the wife applied before the Supreme Court that the suit be transferred from Delhi to Havra. The wife applied before the Supreme Court that the suit be transferred from Delhi to Havra. She contended that she did not have a source of income and that she had a small child of 6 years who had to go to school. Also that she herself was not medically fit and that she was staying with her parents and her parents were extremely unwell. She gave the documentary proof of her parents' age and the age of her child and also the school certificate of the child. Next paragraph. The respondent husband filed an affidavit that he was willing to pay for the travel expenses of the applicant along with one more person and also the expenses for their stay at a 4-star hotel in Delhi. तो उसने कहा कि अगर वो ट्रैवल करेगी तो उसके साथ कोई और अटेंडेंट होगा उसका और अपनी वाइफ का, दोनों का मैं 4-स्टार होटल का स्टे और आने जाने का खर्चा मैं उठाऊंगा, स्पॉन्सर करूंगा। दैट इज द ऑफर दैट ही हैज मेड टू डिसाइड वेदर द सूट शैल बी ट्रांसफर्ड और नॉट। डिसाइड वेदर द सूट शैल बी ट्रांसफर्ड और नॉट। तो इसका आंसर आप लिखिए यूपी के हिसाब से 250-250 के वर्ड्स के में या दिल्ली के हिसाब से 100 वर्ड में। दो तरीके से लिखना आपको ये आंसर और इसका मॉडल आंसर देंगे। यू वुड सी the model answer in the next lecture. Till then you try to solve it yourself. That's it for this lecture. Thank you.